Peace be upon you. Jamaat-e-Islami is going to launch a nationwide campaign on the topic peace and humanity. Every one of us know that the present situation of the country. We know that communal harmony is totally disturbed and hatred politics is day by day increasing. In this connection, we are going to launch a campaign from 21st of August to 4th of September 2016. During this campaign, Jamaat-e-Islami will conduct public meetings, group meetings, and we are going to establish Sadbhavana Manch. This manch will be utilized to propagate peace and communal harmony among different sects of the society. Apart from this, we will conduct essay writing competition in different schools and colleges. We will conduct professional meets. We will conduct different small gatherings, and we will try to convey this message throughout the country. जमात-ए-इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। तो मुल्क की सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ ख़राब हुई है, अगरचे के बड़े फसादात हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे वाक़यात हर कुछ दिनों के बाद हो रहे हैं, जिसमें कभी दलितों पर अटैक हो रहे हैं, कभी क्रिश्चियंस के चर्चेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, कभी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, कभी गौ रक्षकों के हवाले से हो रहे हैं, कभी किसी और इशू को लेकर हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि पूरे मुल्क की सूरत हाल सेंसिटिव होती चली जा रही है। कई बड़े बड़े दानिश्वरों और ख़लमकारों ने अपने अवार्ड्स वापस किए हैं, कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ మతోన్మాద శక్తులు తమ వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నట్టు కనబడుతున్నది. ఇంతకు ముందు పెద్ద పెద్ద మత కలహాలు, గుజరాత్ లాంటి మత కలహాలు చెలరేగాయి, వారు పాల్పడారు. కానీ ఇప్పుడు తమ ఎత్తుగడలు మార్చుకున్నారు. పెద్ద పెద్ద మత కలహాల వల్ల అంతర్జాతీయ ప్రతిష్ట మరియు విమర్శలు తప్పవు. కాబట్టి కొత్త ఎత్తుగడతో చిన్న స్థాయిలో భయంకరమైన సంఘటనలు, లో వాల్యూ బట్ విత్ హై ఇంటెన్సిటీ ఇన్సిడెంట్స్ వారు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు 2015లో 17% పెరిగాయని మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు పార్లమెంట్లో చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ చిన్న చిన్న సంఘటనలే కానీ అత్యంత అమానుషమైన, భయంకరమైన, క్రూరమైన సంఘటనలు. దీనికి అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఇందుకు ఒక ఉదాహరణ, జార్ఖండ్లో ఒక యువకుడు మరో కుర్రవాడి యొక్క శవాలు చెట్టుకు వేలాడుతూ కనబడాయి. అదేవిధంగా దాద్రిలో మొహమ్మద్ అల్లాహ్ ఇంటిపై దాడి చేసి భీభత్సంగా చంపేశారు. గుజరాత్లో దళితులపై బహిరంగ పైశాచిక దాడి చేశారు. మతోన్మాదాన్ని విమర్శించిన మేధావులు లక్ష్యం చేసుకొని వారిని హతమార్చడం కూడా జరిగింది. ఈ పరిస్థితికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. మత విద్వేషాలు, విషయాన్ని బ్రిటిష్ వారు విభజించు పాలించు, డివైడ్ అండ్ రూల్, ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం
మన సమాజంలో చర్చించారు. ఇప్పుడు మతోన్మాద శక్తులు తరచూ మతోన్మాద నినాదాలు ఇస్తూ కొత్త సమస్యలు, వారు కొత్త ఇష్యూస్ పాటుపడుతున్నారు. మత విద్వేషాన్ని రెచ్చగొడుతున్నారు. ఉదాహరణకి ముస్లిం జనాభా పెరిగిపోతున్నదని, ముస్లింలు తరచూ 4 పెళ్లిళ్ళు చేస్తారని चंद सालों से इसको नजर लग गई है और इसके नतीजे में बहुत से वाकयात रोनुमा हो रहे हैं. आप जानते हैं कि 2014 से पहले बड़े बड़े फसादात इस मुल्क के अंदर हुए. यहाँ पर मलियाना हुआ, यहाँ पर गुजरात हुआ, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े वाकयात रोनुमा हुए. लेकिन जब से फस्ताई कुव्वतें और ताकतें इख्तिदार के अंदर आ गई हैं, उन्होंने अपनी हिम्मत अमली को तब्दील कर दिया है. वो बड़े बड़े फसादात की जगह पर वो एक ऐसे वाकयात रोनुमा करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंतहाई वहशतनाक, इंतहाई दहशतनाक, कि उससे लोग खौफजदा हो जाएं. चुनाचे ऐसे वाकयात के अंदर बहुत इजाफा इस असना में हुआ है. यकीनन बड़े फसादात नहीं हुए हैं. ऐसे वाकयात रोनुमा करने की वजह क्या है? लोगों को खौफनाक कर दिया जाए, लोगों में एहसास कमतरी पैदा कर दी जाए. इस तरह के वाकयात रोनुमा होने शुरू हो गए हैं. इसकी मिसालें हमारे दोस्त ने अभी की. झारखंड के अंदर एक नौजवान और एक मासूम बच्चे की लटकती हुई नाश को लोगों ने देखा, और दादरी के अंदर मोहम्मद अखलाक को लोगों ने मार मार कर और उसके घर में दाखिल होकर उसके कत्ल करते हुए लोगों ने देखा. और लोगों ने अपनी सर की आंखों से देखा कि गुजरात के अंदर दलितों ने एक मुर्दा गाय का चमड़ा जब उतारा तो उन्होंने उनकी चमड़ी उतार दी, लोगों को मारा, पीटा और उनको बांधकर शहर के अंदर उन्होंने घुमाया. ये सारे वाकयात हमने देखे और इसी तरह कई वाकयात हैं. जाहिर है कि इस मौके पर सारे वाकयात को बयान नहीं किया जा सकता. इस सूरत हाल के पेश नजर जो मुनाफिरत फैलाई जा रही है, गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, गलत फहमियों की बुनियादी वजह इस मुल्क में अंग्रेजों की वो पॉलिसी है कि लड़ाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है. लेकिन यहाँ पर कुछ सियासी कुव्वतों ने यह तय कर लिया है कि जब तक समाज के अंदर तफरीक पैदा नहीं की जाएगी, मुनाफिरत पैदा नहीं की जाएगी, फिरकावाराना जहर को नहीं खोला जाएगा, उस वक्त तक हम इख्तिदार की गद्दियों पर नहीं बैठ सकते. चुनाचे उन्होंने समाज को तकसीम करना शुरू कर दिया है और उसके लिए नए किस्म के नारे, नए किस्म के इशूज वो ले आ रहे हैं. जैसे धमाको मुस्लिम आबादी, इसी तरह मुसलमान एक से ज्यादा शादियां करता है, उसकी आबादी के अंदर तेजी के साथ में इजाफा हो रहा है. गैर मुस्लिम आबादी नकले वतन कर रही है, नकले मकामी कर रही है. और इसी तरह के कई इशूज वो ले आकर लोगों के अंदर लौजहाद, इस तरह की बातें कहते हुए जिसकी कोई बुनियाद नहीं पाई जाती, लोगों के अंदर मुनाफिरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है. तो इन हालात में जाहिर है कि जमात इस्लामी हिंद हमेशा से अमन की मुतलाशी रही है और वो अमन को कायम करने के लिए, लोगों के दरमियान में मोहब्बत और उल्फत को कायम करने के लिए वो हमेशा काम करती रही है. चुनाचे इन वाकयात की शिद्दत की वजह से जमात इस्लामी हिंद ने यह तय किया कि 21 अगस्त से 16 सितंबर तक एक मुल्कगीर मुहिम, अमन व इंसानियत मुहिम चलाई जाए. तो ये अमन व इंसानियत मुहिम के अंदर हम सबसे ज्यादा इंसानों को मुखातब करेंगे, समाज के उन अफराद को मुखातब करेंगे और उनके ज़मीर को झिझोड़ने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर शऊर बेदार करने की कोशिश करेंगे. इस बात की कोशिश करेंगे कि किसी फर्द या किसी ग्रुप या किसी गिरोह को इस बात का इख्तियार हरगिज नहीं होगा कि वो कानून को अपने हाथ में लेगा. कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने का किसी को इख्तियार नहीं है और इसको कर्ब करने की और इसको खत्म करने की कोशिश करेगी. इसी तरह लोगों के दरमियान में, मुख्तलिफ तबकात के दरमियान में मोहब्बत और उल्फत, एतमाद बहाल करने की कोशिश की जाएगी. उसके लिए
بڑے بڑے پروگرام جہاں پر رکھے جائیں گے وہاں پر ہم انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز، گروپ میٹنگز، کارنر میٹنگز اور لوگوں سے انڈیویجول ملاقات، کتابوں کی تقسیم اور لوگوں سے بات چیت کے ذریعے سے ہم ان کے اندر سماجی ایک شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو ہم برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور اس ملک کو سنبھالنا اور اس کے اندر سے فرقہ وارانہ منافرت کو ختم کرنا یہ ہماری اہم